Assalamu alaikum everyone. I'm going to start today's lecture. I'm going to briefly discuss about the difference between a transudate and exudate. उसके बाद फिर मैं अगला लेक्चर स्टार्ट करूँगी. ये आपके पिछले लेक्चर का एक स्लाइड थी जो रह गई थी, जो मैंने कहा था कि I'll explain it in the next lecture. So basically this is really important. ये दोनों जो terms हैं ये pathology के अंदर ये आप लोगों को बहुत दफ़ा नज़र आएंगी. So it is important that you should know that what is a transudate and what is an exudate. So basically जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा पानी होगा या जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा fluid होगा that is a transudate, और जिस चीज़ के अंदर ज़्यादा proteins होंगे या जिसके अंदर ज़्यादा पानी कम होगा या fluid कम होगा that is referred to as an exudate. So transudate, what is transudate? It is basically a fluid with low protein content and a specific gravity of less than 1.012. You need to remember this number कि उसकी specific gravity जो है वो कितनी है. तो जो है उसका fluid का जो protein content है वो कम होगा और उसकी specific gravity जो है वो भी कम होगी. It is essentially an ultrafiltrate of the blood plasma that results from osmotic or hydrostatic imbalance across the vessel wall without an increase in vascular permeability. ठीक है, जो हमने पिछली दफ़ा सारे प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स जो हैं दैट वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, उसके अंदर बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ अ ट्रांसुडेट इज कि इन चीज़ों का जब भी एक इम्बैलेंस होगा और ज़्यादा फ्लूइड वेसल से बाहर निकलेगा दैट इज रेफर टू एज अ ट्रांसुडेट. लेकिन उसके अंदर वेसल की परमेबिलिटी पे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जो है उसके अंदर वेसल जो है इट इज नॉट अलाउइंग द मूवमेंट ऑफ एनी सेल्स और एनी प्रोटीन्स अक्रॉस द वेसल वॉल. But what happens in an exudate, it's a complete opposite. It is basically an inflammatory extravascular fluid that has a high protein concentration, cellular debris and a specific gravity above 1.020. ठीक है, इसकी जो specific gravity होगी वो बहुत ज़्यादा होगी. उससे मतलब इसकी 1.012 है, इससे कम है, और इसकी 1.020 से ज़्यादा होगी, और इसका जो protein content है that will be really high. It implies significant alteration in the normal permeability of the small blood vessels in the area of the injury. So iske andar what happened here in case of a transudate was a change in the hydrostatic pressure or osmotic pressure. But what happens is if there is a change in the permeability of the vessel wall, it will result in the formation of an exudate. You can see this is a very important diagram. This is showing a normal blood vessel in which the hydrostatic pressure is balanced by the plasma colloid osmotic pressure. But in case of transudate, what happens is that the hydrostatic pressure is way greater than the plasma colloid osmotic pressure. And what are the causes? वही venous outflow obstruction, for example, congestive cardiac failure. And उसके बाद जो है आपके जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी डिक्रीज होने का क्या कॉज हो सकती है? डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, फॉर एग्जांपल लिवर डिजीज है, इंक्रीज प्रोटीन लॉस, फॉर एग्जांपल किडनी डिजीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, इसके अंदर लो प्रोटीन कंटेंट है और लो सेल्स हैं. But what is happening in an exudate is that it has a very high protein content and may contain some white blood cells and red blood cells. इसके अंदर जो है लीकेज हो रही है through the vessel wall. इसके अंदर से यहाँ पे लीकेज जो वेसल वॉल की परमेबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आया है, इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हुआ है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर से. But what is happening in case of an exudate is that there is leakage of the fluid through between the cells. So this is it. Last lecture say this is a really nice table. You should know this. I would memorize this if I were you. I'll move to the today's lecture.
Okay. Today's lecture is an interesting topic. Basically, hemorrhage और थ्रोम्बोसिस को हम डिस्कस करेंगे। हीमरेज का टर्म आपने बहुत बहुत ज़्यादा एट टाइम्स आप लोगों ने सुनी होगी, so we'll discuss that, and then we'll move on to thrombosis, that is the formation of a blood clot, that is the formation of a clot within the blood vessel. So what happens is that normal fluid homeostasis is maintained by vessel wall integrity, intravascular pressure, and osmolarity within certain physiological ranges. This I have explained to you कि एक vessel एक normal under normal circumstances what is happening is कि a vessel जो है उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक उनका एक बैलेंस होता है, जिसकी वजह से ना ही वो वेसल कोलैप्स करती है और ना ही वो वेसल जो है उसके अंदर ढेर सारा जो है वो ब्लड आ जाता है. So if there will be changes in intravascular volume or pressure or protein content or alterations in the endothelial function will affect the movement of water across the wall. अगर इन फैक्टर्स के अंदर से कोई भी चीज़ चेंज होगी तो इवेंचुअली ऑब्वियसली देयर विल बी a change in the movement of water across the vascular wall. So hemorrhage basically क्या होता है, it is the extravasation of the blood due to vessel rupture. ठीक है, extravasation क्या होता है, basically it's the leakage of blood. हीमरेज क्या है, जब भी आपकी वेसल रप्चर करेगी, जब भी आपकी वेसल जो है वो डैमेज होगी, उसमें से जो ब्लड लीक करेगा, लीक आउट ऑफ द ब्लड वेसल, इट इज रेफर टू एज द हीमरेज. इसकी टाइप्स होती हैं, ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपस में ये दे ओवरलैप, थोड़ी थोड़ी इनके अंदर माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, देयर फॉर यू शुड नो व्हाट दीज एक्चुअली आर. हीमाटोमा क्या होता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन अ टिश्यू. अगर एक टिश्यू के अंदर जो है वो ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको आप हीमाटोमा कहते हो. बेशक फॉर एग्जांपल अगर लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है या अगर फॉर एग्जांपल ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, अगर किसी भी टिश्यू के अंदर ब्लड एक्यूमुलेट होगा तो दैट इज रेफर टू एज अ हीमाटोमा. अब पेटिकिए क्या होते हैं, पेटिकिए होते हैं वेरी माइन्यूट, इनका साइज इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स का. It is about 1 to 2 millimeter hemorrhages in the skin, mucous membrane or serosal surfaces. ठीक है, आपको स्किन पे जो अगर छोटे छोटे आपको मतलब 1 to 2 मिलीमीटर अगर आपको पतले से ब्रूजेस टाइप नजर आएंगे, कोई आपको डिस्कलरेशन रेडिश डिस्कलरेशन नजर आएगी, तो दैट इज रेफर टू एज द पेटिकिए. वो कहाँ कहाँ होते हैं, स्किन के अंदर होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में होते हैं और सिरोजल सर्फेसेस में होते हैं. सिरोजल सर्फेसेस जहाँ पे सिरोजा है दैट इज सिरोजल सर्फेसेस. और पर्प्यूरा क्या होते हैं, उससे थोड़े से बड़े होते हैं, ग्रेटर देन अबाउट 3 मिलीमीटर हीमरेजेस. ठीक है, सो दीज आर वेरी फाइन, इनके दरमियान बहुत फाइन लाइन है. इनके द ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट इज द साइज. जो पिटिकिया होंगे दैट इज अबाउट 1 to 2 मिलीमीटर एंड पर्प्यूरा आर ग्रेटर देन 3 मिलीमीटर. अब इकाइमोसिस क्या होते हैं, ये बड़े हैं. These are greater than 1 to 2 centimeter. Subcutaneous hematoma. Subcutaneous क्या है, जो आपके स्किन होती है उसके नीचे जो आपका टिश्यू होता है दैट इज सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो वो वहां पे जो आपको हीमाटोमास बनेंगे. हीमाटोमा क्या है, accumulation of blood within any tissue of the body. So if it is subcutaneous, so then it is referred to as ecchymosis. इसको आप bruise भी कहते हो, जो कि आपको normally जो है whenever you fall down or whenever you have a trauma, आपको जो एक discoloration नजर आती है that is a bruise. तो वो जो है this is what you normally see in your age या on trauma is an ecchymosis, जिसको आप bruise का term भी देते हो. Then these are certain other terminologies that are being used. One is hemothorax, that is the accumulation of blood within the thoracic cavity या आप कह लो lungs. ठीक है, hemopericardium within the pericardial cavity or around the heart. Hemoperitoneum, that is within the peritoneal cavity, और hemarthrosis within the joints. अगर joints के अंदर जो है accumulation होगी that is hemarthrosis. That is, these all terms refer to the large accumulation of blood in one of the body cavities. ठीक है, so this is only concerning the body cavities.
और फिर आपके पास जो है बाकी हीमोथोरैक्स होगा और हीमोपेरिकार्डियम जो है वो होगा। ओके, नेक्स्ट जो है ये देखो, ये पिटिकिए हैं छोटे छोटे। इफ यू कैन सी दीज आर द माइन्यूट, ये जो डॉट लाइक आप लोगों को ब्रूजेस नजर आ रहे हैं, दीज आर रेफर टू एज द पिटिकिए। ये बेसिकली दिस इज द कोलॉन, कोलॉन का जो म्यूकोजा है वो दिखाया गया है। तो इसके अंदर जो छोटे छोटे माइन्यूट जो 1 मिलीमीटर इन साइज जो आपको नजर आ रहे हैं डॉट्स, दीज आर रेफर टू एज अ पिटिकिए, जो कि म्यूकोजा के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा सारा, यू कैन कॉल इट अ हीमाटोमा, बिकॉज ये accumulation जो है ये विद इन इंट्राक्रेनियल हीमरेज हुआ हुआ है। बेसिकली दैट इज द accumulation ऑफ ब्लड विद इन द ब्रेन। और ये मोस्टली सच प्रेजेंटेशन इज लीथल। पेशेंट जो है विद दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो ये जो है ये ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, या मोस्ट प्रोबेबली इसका जो ब्लड प्रेशर था हाइपरटेंशन की वजह से इसकी वेसल्स जो है वो रप्चर कर गई हैं। सो इट कुड बी आइदर केस। ये है सब अरेकनोइड हीमरेज। जो सब अरेकनोइड आपका जो आपका वो जो है आपके ड्यूरा मैटर होता है, सब अरेकनोइड होता है, पाया मैटर होता है, जो ब्रेन की आपकी कवरिंग्स होती हैं उसके अंदर जो आपका हीमरेज अगर हो तो दैट इज रेफर टू एज द सब अरेकनोइड हीमरेज। ये दिस इज द ब्रेन, दिस इज वन दिस इज द वन cerebrum एंड द अदर ये वाला cerebellar इसका cerebral part है। तो दिस इज द subarachnoid hemorrhage. Okay, these are ये छोटे छोटे, you can see these small dots. The small dots are the petechiae, but if they grow larger than about 1 to 2 centimeters, these are referred to as ecchymosis. So in this patient, these are very small, minute dots that are referred to as petechiae, and the larger ones are referred to as ecchymosis. ओके, दिस इज कंजक्टाइवल पिटिकिए। कंजक्टाइवा के अंदर ये छोटे छोटे जो हीमरेजेस हैं, दिस इज कंजक्टाइवल पिटिकिए। एपिड्यूरल, ये ड्यूरा जो है आपका वही ड्यूरा मैटर के अंदर, ये ब्रेन से कंसर्न ही है। दिस इज द हीमरेज, यू कैन सी। और ये हीमोथोरैक्स है। क्लिनिकली इन चीज़ों का कोई डिफरेंस नहीं बनता, बट दिस इज द ब्लड जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द thoracic cavity. ओके, कॉजेज ऑफ हीमरेज क्या होते हैं? ट्रॉमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है। अगर आपके पास अगर एक्सीडेंट इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आप चले जाएं तो आपको रोज जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस मिलेंगे, और उनका जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होगी वो बिकॉज ऑफ हीमरेज होगी। उनका जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है वो लॉस हो जाएगा, वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चले जाएंगे एंड इवेंचुअली दे डाई. So trauma is one of the leading causes. Some of the other causes are vascular diseases with rupture. Basically अगर आपको कोई भी वेसल की डिजीज है, फॉर एग्जांपल एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि आई हैव डिस्कस्ड कि इट इज द accumulation of fatty material within the wall of the blood vessel. आर्टेराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है ऑफ द wall of the blood vessel, and you have aneurysms. Aneurysms basically is an abnormal dilation of the blood vessel. If anything that disturbs the integrity of the blood vessel will eventually can lead to the rupture of the blood vessel. के for example जो aneurysm होता है ये एक abnormal dilation होती है blood vessel की, कि एक particular area में the blood vessel जो है वो it is abnormally dilated. So when it is abnormally dilated, there is an increased risk for its rupture. Then you have low platelets. अगर जो है आपके platelets कम होंगे, I hope you remember your hematology from physiology में जो आपने hematology पढ़ी थी, जो आपने coagulation cascade पढ़ा था, सारे जो आपने coagulative factors पढ़े थे, because वो चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए to understand this. अगर आपके platelets जो हैं वो आपकी basically clotting के अंदर आपके they play a very important role. So if they are low, there are very low platelets, about below 10 to 15,000 per cubic millimeter, then there is a chance of hemorrhage. Coagulopathy, अगर clotting factors जो हैं अगर if they have less than 10% activity, obviously because ये जो हैं वो coagulation के लिए are very important. or if you have ulcers, tumors or infarcts, ठीक है, these are certain causes. Okay.
Basically, if the hemorrhage is acute, that is, if it is very new or it is very rapid, it will be red or purple collection of the blood in the tissue. और if it is chronic or old, it is brown or maroon pasty material. ठीक है, अगर आपके पास पुराना पड़ा हुआ है hemorrhage, तो that will be brown or maroon. अगर आपके पास new आपका hemorrhage है तो that will be red or purple. क्या क्या होते हैं effects of hemorrhage depends on the following factors. लोकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देखो, अगर आपका फॉर एग्जांपल हीमरेज हो रहा है फ्रॉम अ लिम्ब, फ्रॉम एग्जांपल योर arm or from your leg, so that can be controlled and you can save that patient. But for example, if there is an extensive hemorrhage in the brain, so then it's almost impossible to save that patient, because जो intracranial hemorrhage के जो patients आते हैं mostly they die depending upon the size. लेकिन लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल, अगर उसके हार्ट के इर्द गिर्द जो है वो ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, तब भी जो है वो पेशेंट जो है विल बी एट द रिस्क ऑफ डेथ. इसके अलावा जो हमने एक हीमोपेरिटोनियम पढ़ा है कि दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड विद इन द पेरिटोनियल कैविटी. वो बेसिकली साइलेंट होता है. you don't really know कि it is happening, क्योंकि देखो, अगर आपके ब्लड जो है अगर आपकी लिम्ब से बाहर निकलता है या आपकी सरफेस ऑफ स्किन से बाहर निकलता है, तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये मेरी अपेरेंट ब्लीडिंग हो रही है, मुझे हीमरेज हुआ है. लेकिन अगर वो विद इन द बॉडी कैविटी एक्यूमुलेट होता रहता है, तो नो वन विल एक्चुअली नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन. So it goes on happening, and you don't really know, and the patient eventually goes into hypovolemic shock and dies. सो रेट ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कितनी फास्टली जो है यू आर लूजिंग ब्लड. अगर वो हॉस्पिटल सेटिंग में वो पेशेंट है, और अगर आप उस ब्लड को रिप्लेस कर रहे हो, और अगर आप उसको उस रेट के साथ नहीं रिप्लेस कर रहे जिससे वो लूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली पेशेंट जो है वो एट रिस्क होगा. ड्यूरेशन कितनी देर के लिए जो है वो ब्लीडिंग जो है वो कंटिन्यू रही थी. और कोमॉर्बिड डिजीजेस, फॉर एग्जांपल अगर उसे अनीमिया है या कोई हार्ट डिजीजेस हैं या एम्फाइजेमा है, so that will also increase the risk of having मतलब increasing the risk of dying because of hemorrhage. ठीक है, अब हेमोरेजिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? देखो, एक चीज होती है होम्योस्टेसिस, जिसमें आपकी जो बॉडी है वो उसका एक बैलेंस्ड मैकेनिज्म है. आई थिंक आप लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर इसको डिटेल पढ़ा होगा कि होम्योस्टेसिस क्या होता है. यू शुड नॉट कंफ्यूज इट विद द वर्ड हीमोस्टेसिस. Hemostasis is only referring to anything related to blood, because इसके अंदर हीमो का वर्ड आता है. वो होम्योस्टेसिस होता है. होम्योस्टेसिस जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम हीमोस्टेसिस. तो जब हम ब्लड को या हम हीमेटोलॉजी पढ़ते हैं जब भी, तो व्हाट वी बेसिकली आर स्टडिंग is hemostasis, because it is basically the balance or the whatever the control of the anything that is related to blood. So hemostasis is a precisely orchestrated process involving platelets, clotting factors, and endothelium that occur at the site of vascular injury and culminates in the formation of a blood clot and serves to prevent or limit excess bleeding. ठीक है, अगर जो चीज बेसिकली इट इज अ वेरी फाइनली कंट्रोल्ड प्रोसेस, जो कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है वो होती है, जो कि इट इज मीडिएटेड बाय प्लेटलेट्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड एंडोथेलियम at the site of vascular injury and eventually results in the formation of a blood clot. Hemostasis occurs in two stages basically. This is important. I have added these slides because you should know what is actually happening. This is just a revision from your physiology. So primary hemostasis के अंदर क्या होता है कि एक weak platelet plug बनता है that is mediated by the interaction between the platelets and the vessel wall. Hemostasis कब होना है कि जब vessel wall rupture होगी, जब वेसल वॉल इंजर होगी, तब जो इवेंचुअली उस वेसल वॉल के अंदर जो ब्लड क्लॉट जो बनता है, उसको बनाने के लिए जो मैकेनिज्म एट प्ले है दैट इज हीमोस्टेसिस.
सो प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर क्या होगा कि एक वीक प्लेटलेट प्लग बनेगा और उसको उस एरिया को जहाँ पे वेसल रप्चर हुई थी उसको वो फॉर अ टाइम बीइंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो उसको वहां पे रोकेगा। सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या होता है, वो स्टेबलाइज करता है प्लेटलेट प्लग को। पहले मतलब पहले प्लेटलेट प्लग बनना इन प्राइमरी हीमोस्टेसिस, देन व्हाट हैपेंस इन सेकेंडरी हीमोस्टेसिस इज के जो प्लेटलेट प्लग बना था वो स्टेबलाइज होगा और इट इज मीडिएटेड बाय द कोएगुलेशन कैस्केड। कोएगुलेशन कैस्केड वही जो आप लोगों ने फैक्टर्स पढ़े होंगे, वो जी 11 12 से 11 में बनता है, फिर 11 से वो 9 10 में बनता है, जो भी दैट इज अ लॉन्ग कैस्केड, जिसकी वजह से इवेंचुअली जो है फाइब्रिन बन जाता है और क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन एंड क्लॉट इज फॉर्म्ड। ओके, प्राइमरी हीमोस्टेसिस को मैं ब्रीफली अगर इन स्टेप्स जो है एक्सप्लेन करूं, बेसिकली क्या होगा कि आपके पास पहले जो है आपके पास एक टेम्परेरी वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी ऑफ द डैमेज्ड वेसल दैट इज मीडिएटेड बाय रिफ्लेक्स न्यूरल एंड एंडोथेलियल रिलीज फ्रॉम द एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स जो है एंडोथेलिन रिलीज करेंगे जिसकी वजह से जो है उस वेसल की जहां पे उसकी इंजरी हुई थी, जहां पे उसका रप्चर हुआ था, वहां पे जो है वेसल जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगी, मीनिंग उस वेसल की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। उसके बाद उस एरिया पे आके व्हाट विल हैपन इज कि प्लेटलेट्स विल एडहियर टू दैट डैमेज्ड वेसल, वहां पे आके प्लेटलेट्स लग जाएंगे। वॉन विली ब्रांड फैक्टर बाइंड्स एक्सपोज्ड सब एंडोथेलियल collagen platelets bind to wall when you ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज के क्या होगा कि जो वॉन विली ब्रांड फैक्टर होता है ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर। इसने क्या करना है, इसने जहां पे आपका एक्सपोज्ड एरिया है, जहां पे आपका डीन्यूडेड एरिया है, जहां पे डैमेज हुआ है, वहां पे जाके वो कोलेजन के साथ बाइंड करेगा और इवेंचुअली उसको वो प्रोवाइड करेगा प्लेटलेट्स को एक सरफेस टू बाइंड, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, वो नॉर्मली ऐसे जाके उस वेसल वॉल के साथ चिपक नहीं सकते, so they need a base to adhere to. So the base is provided by von Willebrand factor. Then what happens is के platelet degranulation, इसमें क्या होता है, adhesion induces shape change in the platelets and degranulation with release of multiple mediators. ठीक है, degranulation का जहां भी टर्म आएगी इट इज ऑलवेज the release of a number of chemical mediators from a cell, so or from anything। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा कि प्लेटलेट्स एक दफा उस डैमेज एरिया के साथ एडहियर अगर कर जाएंगे तो क्या करेंगे, उनकी शेप चेंज होगी और इवेंचुअली दे विल रिलीज अ नंबर ऑफ मीडिएटर्स। देन इवेंचुअली क्या होगा कि प्लेटलेट्स जो है वो एग्रीगेट करना शुरू हो जाएंगे इकट्ठे आपस के अंदर। प्लेटलेट्स एग्रीगेट एट द साइट ऑफ इंजरी फॉर्मिंग अ प्लेटलेट प्लग व्हिच इज वीक, कोएगुलेशन कैस्केड स्टेबलाइजेस इट। ठीक है, जब प्लेटलेट्स जो है एक दूसरे के साथ एडहियर करेंगे और एग्रीगेट करेंगे तो इवेंचुअली वो एक प्लेटलेट प्लग बनाएंगे जो कि वीक होगा। ये प्राइम plug to fibrin I'm sorry, I think the connection was disrupted. Acha, where was I? Okay. So basically what is happening in case of secondary hemostasis is कि जो weak platelet plug eventually शुरू में बना था primary hemostasis के केस में वो stabilize हो रहा है by the coagulation cascade, जिसके अंदर thrombin produce करता होता है
जो कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट करता है, और फाइब्रिन जो है वो क्रॉस लिंक्ड होता है यील्डिंग अ स्टेबल प्लेटलेट प्लग प्लेट सॉरी फाइब्रिन जो क्लॉट होगा इवेंचुअली वो बनाएगा। बेसिकली इफ यू कैन सी ये डायग्राम है। देखो दिस इज बेसिकली ये वेजो कंस्ट्रिक्शन हुई जिसकी जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था प्राइमरी हीमोस्टेसिस का, कि वो वेसल वॉल जो है उस एरिया के अंदर कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। यू कैन सी कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल डैमेज हुआ है तो ये वेसल वॉल जो है ये इसका साइज जो है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल साइज ऑफ द वेसल। उसके बाद क्या होता है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो वहां पे आके वॉन विली ब्रांड फैक्टर के थ्रू, दिस इज द वॉन विली ब्रांड फैक्टर, ठीक है। अब ये पूरा जो एरिया था दिस वाज डिवॉइड ऑफ एनी एंडोथेलियल सेल, ठीक है। यहाँ पे कोई एंडोथेलियल सेल नहीं है, तो अब प्लेटलेट्स जो हैं उन्होंने आके वैसे नहीं लगना इस एरिया के साथ। तो व्हाट विल हैपन इज कि यू कैन सी दीज small minute red dots that it denotes the von Willebrand factor। वो बेसिकली आके वॉन विली ब्रांड फैक्टर के साथ जो है वो वॉन विली ब्रांड फैक्टर जो है यहाँ पे आके एक बेस प्रोवाइड करेगा ताकि प्लेटलेट्स जो है इसके साथ आके एडहियर कर सकें। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ढेर सारे जो प्लेटलेट्स हैं वो आएंगे। यू कैन सी के प्लेटलेट्स जो हैं उनका जो असल शेप है दिस इज सर्कुलर, but what happens is that once they are attached to the von Willebrand factor they change their shape and release a number of different mediators। उसके बाद फिर इवेंचुअली सेकेंडरी हीमोस्टेसिस आता है जिसके अंदर ये वाला जो कोएगुलेशन कैस्केड है जिसकी वजह से थ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा और वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके ये प्रॉपर जो है स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट जो एक ब्लड क्लॉट है जो बना देगा। जो इनिशियली आपका जो प्लेटलेट प्लग बना था वो बहुत वीक था, अगर वो इसी तरह रहेगा सिर्फ प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगा तो इवेंचुअली क्या होगा कि ये जो है डिसलॉज हो सकता है, ये दोबारा से रप्चर हो सकता है। तो इसको स्ट्रेंथन करने के लिए सेकेंडरी हीमोस्टेसिस कम्स इनटू प्ले and this fibrin is converted into fibrinogen and forms eventually the blood clot। ओके अब क्या होता है कि अगर इनके अंदर डिफेक्ट हो, अगर फॉर एग्जांपल प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर डिफेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर प्लेटलेट्स के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया या वॉन विलीब्रांड फैक्टर के अंदर डिफेक्ट आ गया तो इसके अंदर जो है वो आपको स्किन के अंदर या म्यूकोजा के अंदर स्मॉल ब्लीड्स नजर आएंगे। लेकिन जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस अगर कोएगुलेशन फैक्टर का कोई डिफेक्ट है तो क्या होगा कि आपको लार्ज ब्लीड्स नजर आएंगे सॉफ्ट टिश्यू फॉर एग्जांपल मसल्स के अंदर या जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस के ब्लीड होंगे मोस्टली स्किन पे होंगे या म्यूकोजल सर्फेसेस पे होंगे, और जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के ब्लीड्स होंगे वो विद इन द टिश्यूज होंगे या जॉइंट्स के अंदर होंगे। Generalized defects involving small vessels often presents with palpable purpura and ecchymosis। अगर वेसल्स के साथ कोई ब्लड वेसल के अंदर कोई डिफेक्ट है तो आपको पर्प्यूरा नजर आएंगे। पैल्पेबल पर्प्यूरा क्या होता है, जो कि आपको स्किन के ऊपर होता है, जो पर्प्यूरा होता है जिसको आप पैल्पेट कर सकते हो, बेसिकली वो आपको नजर मतलब आपको पता चलता है कि दिस इज समथिंग, देयर इज एन accumulation of blood, so this is the palpable purpura and then you have ecchymosis। अब we'll move on to thrombosis कि thrombosis क्या होता है। thrombosis basically blood मतलब अगर abnormal clotting of blood हो जाए तो that is basically thrombosis। Thrombosis is an inappropriate activation of normal hemostatic processes such as formation of a blood clot in uninjured vasculature or thrombotic occlusion of a vessel after a relatively minor injury, ठीक है। बेसिकली वो क्या कह रहा है इसके अंदर कि अगर एक एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो जाए ऑफ ब्लड क्लॉट विद इन अ ब्लड वेसल जो कि इंजर्ड नहीं हुई है तो दैट इज थ्रोम्बोसिस। या अगर इस एक माइन्यूट छोटी सी माइनर इंजरी हुई और उसके रिजल्ट के अंदर इतना बड़ा आपका ब्लड क्लॉट बन जाता है जो कि आपके ब्लड वेसल को ऑक्लूड कर देता है, उसका सप्लाई रोक देता है, उसकी ब्लड सप्लाई रोक देता है, तो दैट इज रेफर टू एज थ्रोम्बोसिस। Both hemostasis and thrombosis are regulated by three general components: the vascular wall, the platelets, and coagulation
फैक्टर्स, ठीक है। येट अगेन देखो, अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तब भी बहुत प्रॉब्लम होगा, हीमरेज हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा क्लॉटिंग हो जाएगी तब भी प्रॉब्लम होगा, थ्रोम्बोसिस हो जाएगा। So basically you can say कि these two processes that are going on are the two ends of a spectrum, मतलब ये two extremes हैं of one spectrum. So basically what is happening is कि इसके अंदर जो है हीमोस्टेसिस जो है वो वन एंड है एंड थ्रोम्बोसिस इज द सेकंड एंड। और इसके अंदर जो ये रेगुलेशन है इस पूरे प्रोसेस की, ये पूरा प्रोसेस रेगुलेट कैसे हो रहा है? it is regulated by the vessel wall and platelets and coagulation factors. So we have discussed this. इसके अंदर the three primary causes of thrombus formation are so called the vicious triad. ये vicious triad, it is important. इसके अंदर क्या क्या होता है कि एंडोथेलियल इंजरी, स्टेसिस और स्लोइंग ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड हाइपरकोएगुलेबिलिटी, ठीक है। बेसिकली थ्रोम्बस जब भी बनेगा उसके क्या क्या कॉजेज होंगे, वो थ्री जो कॉजेज हैं वो इसके अंदर इस विशोस ट्रायड जो है वो थ्री कॉजेज जो है वो इलिस्ट्रेट करता है। या तो आपका एंडोथेलियम अगर इंजर हो जाए तो तब थ्रोम्बस बनेगा, या आपका ब्लड फ्लो बहुत स्लो हो जाए तब बनेगा, या आपके अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनके एक्सेस हो, ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा हाइपर कोएगुलेट कर रहा है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कोएगुलेट करने की एबिलिटी है, तो तब भी आपका थ्रोम्बस बनेगा। ये जो विशोस ट्रायड है ये इंपॉर्टेंट है। Vicious triad in thrombosis, endothelial integrity is the single most important factor. Note that injury to endothelial cells can affect the local blood flow and or coagulability. Abnormal blood flow can in turn cause endothelial injury. The elements of the triad may act independently or may combine to cause thrombus formation. So what it is saying is K, whenever a thrombus is formed, the vicious triad is at play. The most important cause or the most important reason is the endothelial injury. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एंडोथेलियल इंजरी की वजह से आपका बन रहा है। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये इंडिविजुअली भी एट प्ले होते हैं या ये आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं। अगर एंडोथेलियल इंजरी होगी फॉर एग्जांपल, सो देयर माइट बी an abnormal, मतलब it might cause in an abnormal blood flow or hypercoagulability. So it is all interrelated. ये तीनों चीजें जो होती हैं ये interrelated भी होती हैं और independently भी act कर सकती हैं। सो एंडोथेलियल इंजरी किस तरह से हो सकती है? अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई टिश्यू डैमेज हुआ है, सर्जरी हुई है, फ्रैक्चर्स हुए हैं, बर्न्स हुए हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, अगर आपकी एबनॉर्मल डेपोजिशन ऑफ फैट विद इन द ब्लड वेसल है, हाइपरटेंशन की वजह से ऑब्वियसली अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो एंडोथेलियल इंजरी होगी या टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होंगे। स्टेसिस कैसे होता है? More commonly a problem on the venous side leading to venous thrombosis, ठीक है। stasis venous side पे ज्यादा होता है। stasis क्या होता है? slowing of the blood flow, जब blood का जो flow है that slows down, it is referred to as stasis. So basically venous side पे ज्यादा common क्यों है? because veins के अंदर blood जो है वो ज्यादा थोड़ा slow जाता है। veins का जो है वो क्या कहते हैं, वॉल भी उस तरह से थिक नहीं होती है, लिहाजा जो ब्लड का जो प्रेशर होता है दैट इज रिलेटिवली लो। तो उसके अंदर इवेंचुअली जो है आपका वीनस थ्रोम्बोसिस का जो रिस्क है इट इज मोर। इट कैन अकर इन द हार्ट, एट्रियल फिब्रिलेशन और इंफार्क्शन, प्रेगनेंसी, लॉन्ग प्लेन राइड, इमोबिलिटी आफ्टर सर्जरी, ठीक है। अगर आपके पास, अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तब भी आपका ब्लड फ्लो जो है वो स्लो होता है। अगर आपके पास, अगर आपने लॉन्ग, आप एक जो जर्नी थी, अगर आपने लॉन्ग ट्रैवल किया है फॉर एग्जांपल 24 आवर्स का अगर आपकी फ्लाइट थी और आप सिर्फ बैठे रहे हो एक ही जगह पे, तो ऑब्वियसली आपकी लेग्स मूव नहीं करेंगी और आपका जो ब्लड फ्लो जो है वो स्लो हो जाएगा। या अगर सर्जरी, अगर एक एक सर्जरी के बाद एक पेशेंट जो है वो बेचारा पड़ा हुआ है और वो हिल नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली उसका जो ब्लड फ्लो है दैट विल बी स्लोड डाउन। Turbulence and stasis क्या होता है कि it disrupts the normal laminar flow and brings platelets in contact with endothelium. It prevents dilution of activated clotting factors, retards the inflow of clotting factor inhibitors, and permit thrombi buildup, promotes endothelial cell activation. Turbulence क्या होता है? ये एक abnormality है in case of a blood flow.
स्टासिस इज जस्ट द स्लोइंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। जब ब्लड स्लो डाउन करेगा तब उसके अंदर टर्बुलेंस आ सकती है। टर्बुलेंस क्या होती है कि नॉर्मली जो ब्लड है वो नॉर्मल एक एक विद इन लैमिनर उसका फ्लो होता है, वो आराम आराम से चल रहा होता है विद इन द ब्लड वेसल। लेकिन अगर वो उसको टर्बुलेंट फ्लो होता है, मतलब वो टर्बुलेंस के साथ वो बहुत ही आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन द वर्ड टर्बुलेंस, बट अगर वो टर्बुलेंस के साथ जो है, अगर आपने आई थिंक फिजिक्स में या कहीं ना कहीं फिजिक्स में आई रिमेम्बर स्टडिंग द वर्ड टर्बुलेंस, आप लोगों को थोड़ा बहुत शायद आइडिया हो व्हाट इज टर्बुलेंस। सो व्हेन एवर देर इज अ चेंज इन द ब्लड फ्लो, जिस तरह से उसका जो अगर वो टर्बुलेंट हो गया तो तब भी जो है वो क्या करेगा कि जो प्लेटलेट्स जो कि बिल्कुल सीधे विद इन द सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल जा रहे थे, उनको वो वॉल के करीब ले आएगा, एंडोथेलियम के करीब ले आएगा और क्लॉटिंग को जो है वो एक्सेलरेट करेगा। हाइपरकोagulability क्या होती है कि एनी ऑल्टरेशन इन द कोagulation pathway that predisposes to thrombosis। अगर आपके पास ज्यादा प्रोकोagulant प्रोटीन्स हो गए हैं या आपके पास रिड्यूस्ड एंटीकोagulant प्रोटीन्स हो गए हैं तो आपके पास हाइपरकोagulability होगी। प्रोकोagulant प्रोटीन्स क्या हैं जो कि कोagulation करवाते हैं, अगर वो ज्यादा हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा कोagulation होगी। एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं जो कि कोएगुलेशन को रोकते हैं, अगर वो कम हो जाएंगे तो ऑब्वियसली ज्यादा कोएगुलेशन होगी। क्लासिक प्रेजेंटेशन इज रिकरेंट डीवीटीज और डीवीटीज एट अ यंग एज। डीवीटी क्या होती है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये चीज हम ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड। अगर आपके लेग्स की जो डीप वेन्स होती हैं उसके अंदर अगर एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट बन जाए तो दैट इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर एक बंदे को हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है तो उसके अंदर डीवीटीज जो हैं वो बार बार होती हैं। और इवन एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड देर आर पेशेंट्स जिनके अंदर हाइपर कोएगुलेबिलिटी हो जाती है बिकॉज उसके अंदर कोएगुलेटिव फैक्टर्स जो हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। उसके अंदर इवेंचुअली जो है यू हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉर्मिंग डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसीलिए जब भी एक इंसान को कोविड होता है तो उसको एंटीकोएगुलेंट्स जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं ताकि उसके अंदर डीवीटी ना हो। और हाइपरकोएगुलेबिलिटी जो है प्राइमरी हो सकती है, मतलब एज इन वो जेनेटिक हो सकती है या सेकेंडरी हो सकती है एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्वायर्ड डिसऑर्डर। ये सर्टन कॉजेज हैं ऑफ हाइपर कोएगुलेबिलिटी। आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी गुड स्लाइड बिकॉज इसके अंदर उन्होंने बेसिकली स्टफ की हुई है ऑल द डिफरेंट डिजीजेस दैट आर एट प्ले। लेकिन चलो वर्थ रिमेम्बरिंग द एग्जांपल्स, जस्ट इसको टेक एज एन एग्जांपल ऑफ कोएगुलेटिव डिसऑर्डर। Factor 5 Leiden mutation is the most common inherited cause of hypercoagulability. It is resistant to the anticoagulant effect of activated protein C. ठीक है। जो एक प्रोटीन सी नाम की एक चीज है, जब वो एक्टिवेट होगी देन इट एक्ट्स एज एंटी कोएगुलेंट। तो अगर जो है इसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, एंटी कोएगुलेंट का इफेक्ट जो खत्म हो जाता है ऑन फैक्टर 5, so it can obviously cause hypercoagulability. Lack of protein S, protein C and antithrombin 3. Patient presents with venous thrombosis, recurrent thromboembolism in adolescence and adulthood. ठीक है। All of these are anticoagulants. अगर ये कम होंगे तो आपकी obviously coagulation जो है वो ज्यादा हो जाएगी। Lupus anticoagulant with lupus erythematosus associated with arterial and venous thrombosis and recurrent abortions. स्मोकिंग, ओबेसिटी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है। जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ओबेसिटी होती है, स्मोकिंग होती है तो आपके अंदर कोएगुलेशन का जो रिस्क है वो इंक्रीज कर जाता है। Thrombi may develop anywhere in the cardiovascular system, but stasis is the major factor in the development of venous thrombi. An area of attachment to the underlying vessel or heart wall, frequently firmest at the point of origin, is characteristic of thrombosis. ठीक है। Basically what it is saying is कि thrombosis के अंदर there will be basically an area of attachment जिसके साथ वो thrombus जो है ये abnormal blood clot जो है that is attached. इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बाई क्या क्या होते हैं? अगर आपके पास आर्टरीज के अंदर थ्रोम्बस बनता है तो आपके पास स्टीनोसिस हो सकता है। स्टीनोसिस क्या होता है? अगर आपके ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन होता है, दैट इज जो उसका डायमीटर होता है वो बहुत कम हो जाता है, वो बहुत नैरो हो जाता है, तो दैट इज स्टीनोसिस। या तो वो बहुत नैरो हो जाएगा या वो कंप्लीटली ब्लॉक्ड हो जाएगा।
there is either stenosis or ischemia of the arterial lumen, जिसके रिजल्ट में इवेंचुअली ischemia होगा या infarction होगी. Obviously when the blood supply to an area जो इस आर्टरी का जो ब्लड सप्लाई, इस आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जा रहा था, ऑब्वियसली वो किसी ना किसी ऑर्गन को सप्लाई कर रहा था. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अगर उस क्या कहते हैं, अगर वो ब्लड वेसल ही ब्लॉक हो गई है तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज के उसके अंदर जो है वो उस एरिया का इस्कीमिया हो जाएगा या उसकी इंफाक्शन हो जाएगी. फिर दूसरी आगे क्या चीज आती है, अगर आपके पास वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस हुआ है, वीनस थ्रोम्बोसिस हुआ है, तो वो आपकी वीनस ऑक्लूजन करा सकता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली क्या होगा कि आपकी लोकल कंजेशन होगी एंड एडीमा होगा. ये चीज हमने लास्ट टाइम थोड़ी डिस्कस की थी. एडीमा जो है वो कैसे होता है, तो लोकलाइज जो है आपकी कंजेशन होती है, एडीमा होता है. और दूसरी चीज पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है. तो हर बंदा कोई जो गरीब बंदा है वो कहता है यार मैं सिरे लेके खा लूं, तो वो सिरे भी. I really don't know आप लोग सारे कहाँ बैठ के सारा सुन रहे हो तो ओके व्हाटएवर. पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो भी हमने डिस्कस किया था उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है. What happens is कि अगर वेन के अंदर थ्रोम्बोसिस होगा, वेन के अंदर एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग होगी, तो उसके अंदर देर इज अ रिस्क के वो जो उसका जो थ्रोम्बस बना था या जो एबनॉर्मल ब्लड क्लॉट बना था उसमें से स्मॉल जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं थ्रोम्बस के वो डिसलॉज कर जाएं और इवेंचुअली क्या करते हैं कि वो ट्रैवल करते हैं. अगर फॉर एग्जांपल लेग के अंदर डीवीटी हुई है तो वो जो है वो ट्रैवल करते हैं अपवर्ड्स, लेग की वेन के थ्रू ऊपर आएंगे, इंफीरियर वेना कैवा में आएंगे, राइट एट्रियम में चले जाएंगे, राइट एट्रियम से उन्होंने राइट वेंट्रिकल में जाना है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड ने जाना है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो चले जाएंगे वहां पे लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर जो है वो क्या होगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स जो है लंग्स की बहुत माइन्यूट होती हैं, वहां पे वो ऑक्लूड कर देंगे, वहां पे वो ऑक्लूजन करेंगे और इवेंचुअली जो है आपको सांस लेने के अंदर डिफिकल्टी होगी. सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ होल डिफरेंट टॉपिक, लेकिन अगर मैं उसको समराइज करना चाहूँ तो उसका ये मतलब है, अगर आपके पास अगर लेफ्ट हार्ट के अंदर जो है थ्रोम्बस बन गया है तो वो सिस्टेमिक एम्बोलिज्म कर सकते हैं. सिस्टेमिक का क्या मतलब है कि दिस वाज ओनली पल्मोनरी, दैट वाज स्पेसिफिक टू द लंग. सिस्टेमिक के वो बॉडी के किसी भी पार्ट में जाके जो है ये लेफ्ट हार्ट से वो डिसलॉज कर सकता है और वो किसी भी एरिया को जो है वो जाके वहां पे अक्लूड कर सकता है. सो व्हाट इट कॉजेज एम्बोलिज्म. अब क्या थ्रोम्बाई किस तरह के होते हैं, उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है लाइंस ऑफ ज़हन. इसका क्या होता है कि दीज आर ऑल्टरनेटिंग डार्क gray layers of platelets with lighter areas of fibrin seen in areas with active blood flow like heart, aorta or large arteries, not in vein. Postmortem clots form after death are gelatinous with a dark red independent portion and yellow chicken patch, super stagnant, usually not attached to the underlying wall. Basically what is happening is कि जो लाइंस ऑफ जहन होती है ना, ये इम्पोर्टेंट होती है इन केस ऑफ फोरेंसिक. जब आपने देखना होता है कि ये जो ब्लड क्लॉट बना था या जो थ्रोम्बस बना था ये इसके बंदे का बिफोर डेथ बना था या आफ्टर डेथ बना था, बिकॉज आफ्टर डेथ देयर इज द टेंडेंसी ऑफ द ब्लड टू क्लॉट. ठीक है, तो लिहाजा जो लाइंस ऑफ जहन होती हैं दीज आर एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर. इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपके पास डार्क ग्रे एरिया होगा और फिर लाइट एरिया होगा. ये लाइंस होती हैं जो ऑल्टरनेटिंग होती हैं. डार्क ग्रे एरिया के अंदर बेसिकली प्लेटलेट्स होंगे और लाइट एरिया के अंदर फाइब्रिन होगा. जब आपके पास एक्टिव ब्लड फ्लो हो रहा होगा, मतलब जब आपका पेशेंट जो है वो मतलब जिंदा होगा, तो तब ये लाइंस जो हैं बनेंगी. ये बेसिकली आर्टरीज के अंदर बनती हैं या आयोटा के अंदर बनती हैं, वेन्स के अंदर नहीं बनती.
जो पोस्टमार्टम क्लॉट्स होते हैं, जो आफ्टर डेथ बनते हैं, वो जिलेटिनस होते हैं विद द डार्क रेड डिपेंडेंट पोर्शन एंड द येलो चिकन फैट, यूजुअली नॉट अटैच्ड टू द अंडरलाइंग वॉल। ठीक है, ये वाली जो थ्रोम्बाई होते हैं जो दैट विद इन लाइफ बनेंगे, they are usually attached to the underlying vessel wall, we have already studied, but what happens is जो postmortem clots होते हैं they are not usually attached। ये हमने बेसिकली अब ये जो थी these lines were in the arteries। ठीक है, अब veins के अंदर क्या होते हैं कि venous thrombi are almost always occlusive। 85 to 90% of the venous thrombi form in lower extremities। The thrombi are dark red with a high concentration of red blood cells। Lines of Zen are absent। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली what it is saying is कि जो veins के अंदर thrombi बनेंगे वो हमेशा ऑक्लूसिव होंगे, मीनिंग कि वो ब्लड वेसल के फ्लो को ऑक्लूड करेंगे, वो ब्लड ल्यूमेन को इतना भर देंगे कि उसके थ्रू ब्लड फ्लो नहीं हो सकेगा। About 85 to 90% of the venous thrombi form in the lower extremities। मैंने आप लोगों को डीवीटी का बताया है, सो मोस्ट कॉमनली जो venous thrombi होते हैं they form in lower extremities। These thrombi are dark red with high concentration of red blood cells। Lines of Zen are absent। Venous thrombi present in areas of less active blood flow, occur in hospitalized patient or bed rest veins of lower extremities। Same thing। Um, Basically, this is blood vessel puri। This is the blood vessel wall। I think this is the blood vessel wall, लेकिन इस चीज में अब आप लोगों को पढ़ने की ऐसे जरूरत नहीं है। So this is the blood clot, मतलब as far as you are concerned this is the blood clot। ये lines of Sahan है, alternating areas of dark and light। लाइट के अंदर जो है, डार्क के अंदर प्लेटलेट्स हैं और लाइट के अंदर फाइब्रिन है। येट अगेन सेम थिंग। ये जो है कार्डियक चेम्बर के अंदर ये थ्रोम्बस बना हुआ है। जो दिस इज आल्सो हार्ट, जिसके अंदर जो है वो थ्रोम्बा बने हुए। आई डोंट थिंक सो, ये आप लोगों के लिए जस्ट फॉर इंटरेस्टिंग पर्पसेस हो सकते हैं। दीज आर द थ्रोम्बा दैट आर फॉर्म्ड। ओके, venous thrombosis, उसके अंदर superficial veins of the lower extremities and deep veins of lower extremities, इसके अंदर क्या क्या difference होता है, इसको quickly कर लेते हैं। जो अगर superficial veins होंगी, superficial veins कौन सी होती हैं, जो बाहर की तरफ होती हैं, जो skin के करीब होती हैं, veins that are the superficial veins, और जो deep veins होती हैं वो अंदर होती हैं। It causes the superficial veins cause pain, swelling and rarely embolize। ठीक है, हमने deep venous thrombosis का भी मैंने आप लोगों को बताया था कि deep venous thrombosis जो होता है उसका most important risk factor जो है that is pulmonary embolism। उसके केस के अंदर pulmonary embolism होगा। बट इन केस ऑफ सुपरफिशियल वेन्स, अगर सुपरफिशियल वेन्स जो है आपकी इन्वॉल्व हैं तो व्हाट हैपेंस इज कि आपकी स्वेलिंग होगी, पेन होगी उस एरिया के अंदर, बट वो एम्बलाइज नहीं करेगा क्योंकि वो नियर टू द सरफेस होता है एंड इट डज नॉट हैव टेंडेंसी टू एम्बलाइज। बट थ्रोम्बा इन डीप वेन्स, पॉप्लिटियल, फेमरल, इलियक वेन मोर लाइकली टू एम्बलाइज। ठीक है, कौन कौन सी वेन्स होती हैं, पॉप्लिटियल होती है। पॉप्लिटियल मोस्ट कॉमन है बिकॉज ये पॉप्लिटियल कौन सी होती है, आपकी पॉप्लिटियल फॉसा के अंदर जो आपकी वेन होती है, जो आपके नी के पीछे जो फॉसा बनता है, दैट इज द पॉप्लिटियल फॉसा। उसके अंदर जो आपकी वेन होती है उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट वो उस एट रिस्क होती है ऑफ डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। फेमोरल हो सकती है, आइलिक हो सकती है, मोस्ट लाइकली टू एम्बलाइज। Superficial veins are associated with varicosities, abnormally dilated tortuous veins। ठीक है, वेरिकोज वेन्स जो हैं, आपने आई थिंक आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा वेरिकोज वर्ड्स का टर्म। सो वेरिकोज वेन इज एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ द वेन जो कि लोअर एक्सट्रीमिटी में होती है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से रहती है। अगर एक बंदा पूरा पूरा दिन खड़ा रहता है तो उसके अंदर जो है आपकी वेन्स जो हैं वो एबनॉर्मली डायलेट होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उसके अंदर जो वीनस वाल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को रोकते हैं वो डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। तो उसके अंदर जो है सुपरफिशियल वेन्स के अंदर आपके पास वेरिकोसिटीज होंगी लेकिन आपके पास डीप वेन्स के अंदर नहीं होंगी। सुपरफिशियल वेन्स के अंदर जो थ्रोम्बाई होंगे देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, इंक्रीज रिस्क ऑफ वेरिकोज अल्सर्स। ठीक है,
एक बंदे को अगर वेरिकोज वेन्स होंगी, एबनॉर्मली डायलेटेड वेन्स इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज, तो देयर विल बी एन इंक्रीज रिस्क ऑफ अल्सर्स, वो इवेंचुअली जो है वो अल्सरेट कर जाते हैं उस एरिया से। About 50% are asymptomatic. Formation of collaterals may produce edema, pain and tenderness. ठीक है, जो सुपरफिशियल वेन्स अगर ब्लॉक होती हैं, थ्रोम्बोसिस होता है उनके अंदर, तो उसके अंदर रेडनेस होगी, पेन होगी, स्वेलिंग होगी, लेकिन क्योंकि डीप वेन्स होती हैं वो स्किन के ऊपर वो साइंस नहीं आते, उसकी स्वेलिंग और पेन इतनी ज़्यादा नहीं होती, और वो एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकती है क्योंकि उसके अंदर कोलैटरल ब्लड सप्लाई जो है वो हो जाती है। अब थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है? इट इज एन इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस दैट causes a blood clot to form and block one or more veins, usually in your legs. The affected vein may be near the surface of your skin or deep within the muscle, deep vein thrombosis. ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से वेन की क्लॉग हो रही है, वेन मतलब बंद हो रही है, तो दैट इज रेफर टू एज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। अब इनके दरमियान जो है क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजी आर्टीरियल और वीनस की, व्हाट इज द डिफरेंस? आर्टीरियल ऑलमोस्ट ऑलवेज अराइजेस फ्रॉम द हार्ट, ग्रो इन रेट्रोग्रेड फैशन। जो थ्रोम्बस है वो ग्रो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जिस तरह से जो है वो ब्लड की फ्लो होगी, जिस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा उस डायरेक्शन के अंदर जो आर्टीरियल थ्रोम्बस है वो ग्रो करेगा। इट फॉर्म्स एट द साइट ऑफ एंडोथेलियल इंजरी और टर्बुलेंस। ठीक है, एंडोथेलियल जहाँ पे एंडोथेलियल इंजरी होगी वहां पे बनेगा, या टर्बुलेंस होगी वहां पे बनेगा। इट इज पेल वाइट लाइंस ऑफ जहन फर्मली एडहेरेंट टू द वेसल वॉल। बट वीनस क्या होगा कि डीप वेन्स के अंदर होगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस जो कर चुके हैं, एंटी ग्रेड होता है टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, क्योंकि वेन्स की जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है दैट इज टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, वेन्स हमेशा, द वेन्स ऑलवेज कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो जो वेन्स के अंदर जो थ्रोम्बस बनेगा वो टुवर्ड्स द हार्ट बनेगा, और जो क्या कहते हैं आर्टरीज के अंदर जो थ्रोम्बस बनेगा वो ऑलवेज अवे फ्रॉम द हार्ट बनेगा। इट अकर्स एट द साइट ऑफ स्टेसिस, लोअर एक्सट्रीमिटीज। देखो ये चीजें, दो चीजें हैं, एंडोथेलियल इंजरी और टर्बुलेंस, ये आपने विर्शॉस ट्रायड के अंदर भी ये चीजें पढ़ी थी। The endothelial injury is more important in case of arterial thrombi and stasis is more important in case of venous thrombi. ये पेल होता है और ये रेड और डार्क होता है, इसके अंदर लाइंस ऑफ जहर नहीं होंगी। दिस इज लूजली अटैच्ड, इजीली एम्बोलाइज, ये जो है ये फर्मली अटैच होता है, लिहाजा ये इट रेयरली एम्बोलाइजेस। लेकिन जो है वीनस जो होता है वो एम्बोलाइजेशन का इसके अंदर रिस्क होता है। एम्बोलाई कॉजेज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, साइलेंट इन अबाउट 50% ऑफ द पेशेंट। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है दैट इज साइलेंट अबाउट 50% ऑफ द पेशेंट, क्योंकि वो इतना माइन्यूट होता है, छोटा होता है, लेकिन इवेंचुअली इट कैन कॉज ह्यूज प्रॉब्लम्स। फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस क्या होता है कि प्रोपोगेशन हो सकती है अगर उसके साथ ज्यादा उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाए फाइब्रिन और प्लेटलेट्स, तो इवेंचुअली वो ज्यादा बड़ा हो सकता है, वो प्रोपोगेट कर सकता है। एम्बोलाइजेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। Early and infected thrombi may detach from the site of origin and may block the distal blood vessels. Resolution क्या होती है कि वो रिजॉल्व कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। Recent thrombi can undergo total lysis by activation of fibrinolytic system, mostly small venous thrombi. अगर छोटे venous thrombi होंगे तो वो डिसॉल्व कर सकती हैं आफ्टर द फर्स्ट 22 to 3 hours, thrombi won't undergo lysis। ठीक है, अगर 2 से 3 घंटे गुजर गए एक थ्रोम्बस को बने हुए और वो डिसॉल्व नहीं हुआ, तो उसके बाद उसके डिसॉल्व होने के चांस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकैनलाइजेशन क्या होगी कि रिप्लेसमेंट बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉलोड बाय रिकैनलाइजेशन और हीलिंग टोटली to leave only a small fibrous lump as evident in the previous thrombus। बेसिकली क्या होगा कि वो जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू। ठीक है, वो जो एरिया जहाँ पे थ्रोम्बस हुआ था और उस ग्रैनुलेशन टिश्यू को रिकैनलाइज कर दिया जाएगा और इवेंचुअली स्मॉल छोटा सा एक लंप रह जाएगा। और बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि ये डिसॉल्व के अंदर पूरा का पूरा जो है वो थ्रोम्बस जो था वो डिसॉल्व हो गया था, बट इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो रिकैनलाइज हो रहा है, मतलब वो उसके अंदर से वो अपना एक रास्ता, वो जो ब्लॉकेड हुई थी उसको वो दोबारा उसके अंदर से वो एक नया रोड बनाने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज रिकैनलाइजेशन।
हाइलिनाइजेशन कैल्सिफिकेशन क्या होगा कि डिग्रेडेड थ्रोम्बस विद सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लीड टू माइकोटिक एन्यूरिज्म, ठीक है। अगर आपके पास थ्रोम्बस होगा और उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है, तो दिस कैन लीड टू समथिंग रेफर्ड टू एज द माइकोटिक एन्यूरिज्म। मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाऊंगी बिकॉज ये सारी इंडिविजुअल डिजीजेज हैं और उनको पढ़ाते पढ़ाते दे नीड एन एंटायर लेक्चर। ओके, सो दिस वाज थ्रोम्बोज्ड वेन। इसके अंदर क्या था कि या ये रिजॉल्व हो गई, या ये एम्बलाइज होगी टू द लंग्स, या ये ऑर्गेनाइज होके जो है वो इनकॉपरेट होगी इनटू द वॉल, या ये रिकैनलाइज होगी। ये देखो ये पूरा थ्रोम्बस था, तो दिस इज रेड मीन्स कि इट इज थ्रोम्बोज्ड एंड पिंक मीन्स कि वेसल वॉल ठीक है, खुली हुई है। तो ये रिकैनलाइज होके इसने अपने यहाँ पे छोटे छोटे जो रास्ते हैं वो बना लिए। ओके, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास आर्टरीज या वेन्स में होंगी तो एम्बलाइजेशन हो सकती है, स्कीमिया इंफाक्शन हो सकती है, venous thrombi may lead to congestion, poor wound healing, skin ulcers and painful thrombosed veins. Microthrombi in microcirculation may cause DIC, disseminated intravascular coagulation। ये चीज भी आप लोगों ने आई थिंक एट सम पॉइंट पढ़ी होगी। जो छोटे छोटे अगर माइक्रो एम्बलाई बनेंगे तो दैट कैन लीड टू DIC। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तकरीबन 20 मिनट तक जो हैं वो सिर्फ 20 बच्चे थे और अब अचानक से 53 बच्चे आ गए टेस्ट लगवाने के लिए। चलो आप लोगों की मर्जी है। आज क्या दिन है? आज है जी okay, I'm calling out the names, please be attentive. Shifa Umar, Shifa Umar, Yes, ma'am. Nida Aslam, Nida Aslam, Sharjeel Arshad, Yes, ma'am. Manahil Shehzad, Manahil Shehzad, Maria Shaukat, Present, ma'am. Sanam Rafiq, Sanam Rafiq, Present, ma'am. Ifra Ali, Yes, ma'am. Malik Muhammad Hassan, Yes, ma'am. Ghalia Khan, Ghalia Khan, Aisha, Present, ma'am. Hira Ahmed, Present, ma'am. Rimsha, Present. Fatima, Present, ma'am. Iza Ilahi, Iza Ilahi, Mohammad Abu Bakr। Present, ma'am. का माइक का इशू आ रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। Ma'am, present, मैम। Excuse हाँ me, ठीक है, ma'am. क्लास में लगा दी आपकी। मैम वो मोहम्मद मेरा अबू ना मुझे कैंपस जाना है तो मुझे मैम मेरी अटेंडेंस हो गई है ना, मैं चली जाऊँ? कौन? मैम मैम शिफा मैं उमर, नुसरत हूँ। अटेंडेंस हो गई है, मैं क्लास हाँ हाँ, कर दूँ? चलो जो जिनकी अटेंडेंस हो गई है वो चले जाएं। मैम मेरी बात सुनिए, मुझे ना कैंपस जाना है तो मेरी अटेंडेंस लगा दें प्लीज, मुझे अभी निकलना है। एक सेकंड, नुदरत नूर, यस मैम। ठीक है आपकी लगा दी मैंने। ओके मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्या है? मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर, शिजा फारूक, शिजा फारूक,
फिजा फारूक प्रेजेंट हो, किधर हो आप? ओके। अहमद नदीम, अहमद नदीम, सादिया सैफ, मैम मेरा ना Present. बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो आवाज आपकी नहीं क्लियर आ रही। यार क्या मसला है, क्या हुआ है? बार बार disconnect हो रहा है, सिग्नल का मसला मैम। आपको 1.5 घंटे के लेक्चर के बाद पता चला कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। मैम अभी अच्छा ठीक है, आपकी प्रेजेंट है, ठीक है, आप प्रेजेंट हो आमिर ताहिर। ओके मैम, थैंक यू। सादिया सैफ, Present. सादिया सैफ, रिमशा इजाज, Present. ओके, रिमशा इजाज प्रेजेंट है? नहीं। उसामा इरशाद, Yes, ma'am, present. फातिमा नासिर, फातिमा नासिर, she is here in my guest list but she is not listening. मानूर लियाकत, मानूर लियाकत, यार क्या हो आप लोग सारे वैसे कसम से। बिस्मा शाहिद, बिस्मा शाहिद, the entire class is absent माशाल्लाह से। Present, ma'am. ओके। सना जावेद, सना जावेद, नेहा, Present, नेहा, ma'am. ओके, नेहा Present. इज अ गुड, नेहा आपकी एक भी एब्सेंट नहीं है। ओके नेक्स्ट यू हैव निमरा शहजाद, निमरा शहजाद, दुआ खान, सॉरी दुआ खान तो Present, ma'am. ओके। अरीज आमिर, अरीज आमिर, मैम मेरी प्रेजेंट लग जैन, गई है। हाँ हाँ ठीक है आपकी लग गई है। अरीज आमिर, जैनब महबूब, जैनब महबूब, सादिया बदर पराचा, सादिया बदर पराचा, गुलशन सलीम, गुलशन सलीम, अक्सा जावेद, Present, ma'am. सारा रियाज, Present, ma'am. नूर फातिमा, Present, ma'am. आयशा मुगल, Present, ma'am. एमन नसीर, Present, ma'am. रिजवानुल हक, Present. फरीहा फातिमा, Present, ma'am. वर्दा फातिमा, Present, ma'am. हुमैरा सईद, Ma'am. Present, ma'am. ओके, महानूर आसिफ, Present. मनाहिल कामरान, Present, ma'am. सिदरा अब्बास, Present, ma'am. आयशा हसन, Present, ma'am. किरण रानी, Present, ma'am. हाफिज मोहम्मद सलमान, Present. आयशा नासिर, आयशा नासिर, एमन हबीब, एमन हबीब, मोहम्मद हामिद, Present, ma'am. मोहम्मद आमिर ताहिर, मैम मेरी होगी। हाँ हाँ आपकी हो गई है हामिद, मोहम्मद आमिर ताहिर हो गया ठीक है। उमैर अहमद, उमैर अहमद,
वानिया खान, Present, ma'am. मोहम्मद राफे, प्रेजेंट मैम। सिमाब फयाज, Present. सहर नदीम, सहर नदीम, कशफ मकसूद, Present, ma'am. तैमूर मुजाहिद, तैमूर मुजाहिद, उम्मे एमन, उम्मे एमन, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, Present. ओके, पारा नूर, Present, ma'am. मैम मुझे मार्क कर दिया आपने? हाँ जी आपकी लग गई है। नादिर हुसैन, Ma'am, मेरी लग प्रेजेंट गई? मैम। हाँ जी लग गई है, पारा आपकी लग गई है। Okay, ma'am. अमानिया ताहिर, नादिर हुसैन प्रेजेंट। हाँ हाँ नादिर पता है मुझे। Present, ma'am. अमानिया ताहिर, Present. मलाइका ताहिर, Present, ma'am. जिले हुमा खान, Present, ma'am. अतिया कयूम, मैम जिले उमा की लग गई है? हाँ जी लग गई है। Present, अतिया ma'am. कयूम, Present, ma'am. ओके। सज्जल खान, Present, ma'am. समाइला कौसर, Present, ma'am. मुकद्दस जहीर, Present, ma'am. okay, thank you so much. Anyone has any questions you can ask. मैम मेरी नहीं लगी। मैम क्विज कब होना है हाँ इसका? मैम क्या मरियम इम्तियाज। मरियम इम्तियाज, आपकी क्यों नहीं लगी, किधर नहीं लगी? मैम आपने मेरा नेम कॉल नहीं किया। यार मेरे पास लिस्ट में आपका नेम ही नहीं है, मैं आपका नेम मुझे आपका मैनुअली अभी लिखूं? हाँ मुझे लिंक भी नहीं आता। मेल भी की थी आपको। यार आई विल अपडेट योर नेम, इसके अंदर कुछ नेम्स आई गेस मिसिंग है। मरियम इम्तियाज, जी मैम। ओके, आप मुझे एक दफ़ा प्लीज़ रिमाइंडर ईमेल कर दो ताकि मैं उसको देख सकूं, ठीक है? ठीक है मैम मैं कर देती हूँ। मैम जो फिर बाकी क्लासेस ली हैं वो देख लेते कर लेते हैं उसका। आपका आपका प्रेजेंट था, ठीक है, विल सी, जी ठीक मैम। है, क्योंकि मेरा लिस्ट में नाम नहीं था। चलो मैं हाँ कर जी देती हूँ मैम। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, प्लीज ईमेल मी, ठीक है? ठीक है मैम। एनी मोर क्वेश्चंस? मैम क्विज के बारे में नहीं आपने कुछ बताया। एक्चुअली मैं 10 मिनट्स लेट ज्वाइन करी थी क्लास। नहीं अभी मैंने क्विज का ना सोचा नहीं है, लेकिन आई होप आई थिंक सो इस मंथ के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जो है मैं आपको ना इंशाल्लाह आई लेट यू नो कि कब मैंने लेना है, लेकिन बी रेडी फॉर अ क्विज इन, मतलब नॉट नेक्स्ट वीक, फॉर एग्जांपल आई माइट टेक इट ऑन नेक्स्ट थर्सडे, मतलब एक तो 26 को थर्सडे है, उससे अगले वाला जो थर्सडे है उस दिन 3rd of December मान लो, ठीक है? ओके। ये लेक्चर्स का होगा। I'll send you an email for that. मैं आप लोगों को भेजूंगी email. ओके मैम थैंक यू। ठीक है, any more questions? Okay, thank you so much everyone.